السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ہے تیسرا کمرہ۔ ایک روز شہزاد صاحب کے ذہن میں آیا کہ جب وہ ہر سال سیر کے لیے جاتے ہیں تو کیوں نہ کسی پرفضا پہاڑی مقام پر اپنا کاٹیج بنوا لیں۔ حامد صاحب کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنی بیوی، بیٹے شہزاد، بہو ارم اور دونوں پوتوں حسن اور محمود کے ساتھ ایک شہر میں رہتے تھے۔ ان کی کپڑا بنانے کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی جس سے انہیں اتنی آمدنی ہو جاتی تھی جو ان کے اچھے طریقے سے گزر بسر کے لیے کافی تھی۔ وہ سال کے 10 مہینے تو فیکٹری کے کاموں میں مصروف رہتے، مگر بقیہ 2 ماہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی پرفضا مقام پر گھومنے پھرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اکثر اوقات ان کا بیٹا شہزاد ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا کیونکہ حامد صاحب کی غیر موجودگی میں وہی فیکٹری کے کاموں کی دیکھ بھال کرتا۔ ایک روز شہزاد صاحب کے ذہن میں آیا کہ جب وہ ہر سال سیر کے لیے جاتے ہیں تو کیوں نہ کسی پرفضا پہاڑی مقام پر اپنا کاٹیج بنوا لیں، کیونکہ گھومنے پھرنے کے دوران ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز میں کمرے بڑی دشواری کے بعد ملتے تھے اور ان پر اخراجات بھی بہت ہوتے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے اپنے شہر سے تقریباً 300 کلومیٹر دور کالی پہاڑی نامی ایک پرفضا جگہ پر پلاٹ لے کر ایک کاٹیج کی تعمیر شروع کروا دی۔ یہ پلاٹ کالی پہاڑی کے اوپر اس کے درمیان میں تھا۔ وہاں کچھ دوسرے بھی کاٹیجز بنے ہوئے تھے مگر ہر ایک کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ ان کاٹیجز کو بھی ان لوگوں نے بنوایا تھا جو یہاں گرمیوں کے موسم میں آتے تھے، باقی پورا سال یہ بند ہی رہتے تھے۔ کالی پہاڑیوں کے نیچے چند گاؤں بھی تھے، وہ 15-20 منٹ کی مسافت کے بعد وہاں تک پہنچا جا سکتا تھا۔ حامد صاحب کا یہ کاٹیج 6 ماہ میں بن کر تیار ہو گیا۔ اس کی تعمیر کے دوران انہوں نے کام کی رفتار کا جائزہ لینے کے لیے یہاں کے کافی چکر لگائے۔ وہ بہت خوش تھے۔ ایک تو آس پاس کے نظارے بڑے دل فریب تھے، دوسرے وہاں سکون بہت تھا۔ شہر کے ہنگاموں سے دور اتنے پرسکون ماحول میں کچھ وقت گزارنا واقعی خوشی کی بات تھی۔ خوش قسمتی سے وہاں گیس، پانی اور بجلی کی سہولتیں بھی میسر تھیں۔ انہوں نے احتیاطاً ایک بڑے سے جنریٹر کا بھی انتظام کر لیا۔ تینوں کمروں کا یہ کاٹیج مکمل ہوا تو وہ خاص طور سے اس کا جائزہ لینے کے لیے کالی پہاڑی پہنچے۔ اسے پوری طرح مکمل دیکھ کر انہیں بہت خوشی ہوئی۔ شہزاد بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس نے بھی اس کی بہت تعریف کی اور فوراً ہی تیسرے کمرے پر قبضہ جما کر اسے لاک کیا اور چابی جیب میں ڈال کر بولا، پاپا، مجھے امید نہیں تھی کہ اس قدر خوبصورت جگہ پر ہمارا ایسا گھر ہوگا۔ اب تو میں بھی کبھی کبھی یہاں آ کر رہ لیا کروں گا۔ تیسرا کمرہ میرا ہے۔ اس کے منہ سے کاٹیج کی تعریف سن کر حامد صاحب خوش ہو گئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے سب کو بتایا کہ کاٹیج شہزاد کو بہت پسند آیا ہے اور تیسرے کمرے پر اس نے قبضہ بھی کر لیا ہے۔ سردیوں کی آمد تھی، آسمان پر بادل نظر آنے لگے۔ ان کے دونوں پوتوں حسن اور محمود کی سردیوں کی چھٹیاں بھی شروع ہونے والی تھی۔ ایک روز انہوں نے شہزاد سے کہا، تم نے تو کاٹیج دیکھ لیا ہے، میں سوچ رہا ہوں بچوں کو بھی دکھا لاؤں، وہ کاٹیج بھی دیکھ لیں گے اور ان کی سیر بھی ہو جائے گی۔ شہزاد نے کہا، میں تو فی الحال اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ کل رات میں نے ٹی وی پر محکمہ موسمیات کی رپورٹ دیکھی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس دفعہ وقت سے پہلے ہی برف باری شروع ہو جائے گی اور دوسرے سالوں کی نسبت زیادہ شدت سے ہوگی۔ حامد صاحب ہنسنے لگے، ٹی وی والے تو سنسنی پھیلانے میں ماہر ہیں۔ مجھے پتا ہے جب آدھی سردیاں گزر جائیں گی تب برف باری شروع ہوگی، اور ویسے بھی ہم کون سا لمبے عرصے کے لیے جائیں گے، بچوں کو کاٹیج دکھا کر اگلے روز واپس آ جائیں گے۔ اگلے ہفتے سے ان کے اسکول بھی 15 دن کے لیے بند ہو رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر شہزاد خاموش ہو گیا۔ بچوں کو جب اس پروگرام کے بارے میں پتا چلا تو وہ بھی خوشی سے اچھل پڑے۔ اس سلسلے میں تیاریاں بھی شروع ہو گئیں۔ حامد صاحب کا خیال تھا کہ وہ اتوار کو نکلیں گے اور پیر کو واپسی پر نکل کھڑے ہوں گے۔ اسی دوران شہزاد نے گھر والوں کو بتایا کہ وہ 1-2 روز کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے۔ حامد صاحب نے سنا تو گھبرا کر بولے، ہم اگلے اتوار کو کالی پہاڑی جائیں گے، اتوار سے پہلے آ جانا ورنہ ہمارا پروگرام رہ جائے گا۔ بچوں کو بہت مایوسی ہوگی، وہ تو دن گن گن کر کاٹ رہے ہیں۔ شہزاد نے انہیں اطمینان دلایا کہ وہ ان کے جانے سے پہلے ہی آ جائے گا۔ وعدے کے مطابق وہ اتوار سے پہلے آ گیا۔ اتوار کی صبح 10 بجے کے قریب وہ لوگ گھر سے نکلے۔ شہزاد ان کے ساتھ نہیں تھا۔ حامد صاحب کی غیر موجودگی میں اسے فیکٹری کے معاملات دیکھنا تھے۔ شہزاد کی بیوی ارم نے بہت سارا کھانا پکا کر ساتھ رکھ لیا۔ کاٹیج میں فریج کا بھی انتظام تھا، اس لیے کھانوں کے خراب ہونے کا اندیشہ بھی نہیں تھا۔ شہزاد بچوں کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے آیا اور ان کو گاڑی میں رکھ دیا گیا۔ موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے۔ 4-4.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ کالی پہاڑی پہنچ چکے تھے۔ ایک صاف شفاف سڑک پر پہاڑوں کے اوپر تک جاتی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف میں گہری کھائیاں تھی، اس لیے اس کے دونوں اطراف میں لوہے کے پایوں کی ریلنگ لگی ہوئی تھی۔ یہاں پر بادل گہرے ہو گئے تھے اور بارش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ان کی گاڑی سے آگے بھی ایک گاڑی جا رہی تھی، اس میں ایک میاں بیوی اور 3 بچے سوار تھے۔ ارم سوچنے لگی کہ شاید یہ لوگ ان کے قریبی پڑوسی ہوں گے کیونکہ یہ گاڑی بھی اسی رستے پر جا رہی تھی جس پر وہ جا رہے تھے۔ اس کا خیال درست تھا۔ وہ گاڑی سیدھے ہاتھ موڑ کر تھوڑی دور ایک عمارت کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ کاٹیج پہنچ کر حسن اور محمود بہت خوش تھے۔ سب نے مل کر گاڑی سے سامان اتارا۔ سامان بہت زیادہ تھا اور اس میں زیادہ تر چیزیں کھانے پینے کی تھیں۔
برتن उन्होंने साथ नहीं लिए थे क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें इस कॉटेज में पहले ही से मौजूद थीं। हामिद साहब ने ताला खोला और वो अंदर दाखिल हो गए। कॉटेज को अंदर से देखकर सब खुश हो गए। बड़े-बड़े बिस्तर, आरामदायक कुर्सियाँ, कुर्सियों के साथ मेज़ें, घर के कमरों में खूबसूरत कालीन बिछे हुए थे। हामिद साहब की बीवी और इरम पके हुए खाने को फ्रिज में रखने लगी। हामिद साहब ने किचन में जाकर चाय की केतली में पानी भरकर इसे गैस के चूल्हे पर रख दिया। दोनों बच्चे खिड़की में से बाहर देखने लगे। हामिद साहब ने इनसे कहा, तुम दोनों घर से निकल कर बाहर नहीं जाओगे। इस पहाड़ पर जंगलों में मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी रहते हैं। महमूद ने कहा, मैं तो दादा अब्बू इनसे नहीं डरता। आपके पास बंदूक जो है। हामिद साहब जब भी ऐसी जगहों पर जाते थे तो अपनी बंदूक को साथ ले जाना नहीं भूलते थे। उन्होंने हंसकर कहा, हाँ बंदूक तो है मेरे पास, मगर तुम दोनों के पास तो नहीं है ना। हम इकट्ठे ही बाहर जाया करेंगे ताकि एक ही बंदूक से तीनों का काम निकल जाए। इतनी देर में इरम काम खत्म करके आ गई और चाय बनाने लगी। थोड़ी देर बाद वो सब लोग चाय पी रहे थे। सर्दी बढ़ गई थी और इस सर्दी में चाय ने बहुत मजा दिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि बिजली चमकने लगी और बादलों की घन गरज दिलों को दहलाने लगी। तेज हवाएं चलने लगी थी और दरख्तों से टकराकर अजीब तरह का शोर पैदा कर रही थी। यकलख्त इतनी सारी तब्दीलियां देखकर हामिद साहब को कुछ फिक्र सी हुई। वो खिड़की के नजदीक कुर्सी पर बैठ गए और बाहर देखने लगे। तूफानी हवाओं और बारिश में शिद्दत आती जा रही थी। थोड़ी देर बाद तेज हवाएं चलना बंद हुई और बारिश थमी तो रुई के सफेद सफेद गाले आसमान से गिरना शुरू हो गए। इनकी वजह से आसपास का मंजर तो दिलकश नजर आने लगा, मगर हामिद साहब को बहुत सी फिक्रों ने घेर लिया। मौसम की इस अचानक तब्दीली ने इन्हें परेशान कर दिया था। वो सोचने लगे कि अगर ये बेवकत की बर्फबारी न रुकी तो वापसी के रास्ते बंद हो जाएंगे। इनकी बीवी ने खिड़की के दरवाजे बंद किए और बोली, बच्चों सर्दी बढ़ गई है, तुम लोग कमरों में बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद खाना लग जाएगा। हामिद साहब ने दीवार पर लगे स्मार्ट टीवी पर बच्चों को कार्टून लगा दिए और खुद भी इनके साथ बैठ गए। बच्चे बहुत खुश और मगन थे और बड़े मजे से कार्टून देख रहे थे। थोड़ी देर में खाना लग गया। इन्हें सफर की भी थकन थी। खाना खाकर जो इन्हें नींद आई तो सबने रात ही की खबर ली थी। हामिद साहब की आंख मोबाइल की बेल की आवाज से खुली थी। शहजाद का फोन था। हामिद साहब उठकर बरामदे में आ गए ताकि इनकी बातें करने की वजह से किसी की नींद खराब ना हो। बाहर निकले तो हैरान रह गए। हर चीज ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी थी। इस वक्त भी रुई के गाले तेजी से जमीन पर गिर रहे थे। शहजाद ने जब पूछा कि क्या हाल है तो हामिद साहब घबरा कर बोले, यहाँ तो तेज बर्फबारी शुरू हो गई है। तुम ठीक कह रहे थे, मौसम एकदम से तब्दील हो गया। हमने यहाँ आकर गलती की है। शहजाद ने हंसकर कहा, मेरी मजबूरी थी, वरना मैं भी आप लोगों के साथ आता। लेकिन शहजाद, मैं एक और बात सोच रहा हूँ। बर्फबारी बहुत तेजी से हो रही है। अगर रास्ते बंद हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खाने पीने का सामान भी नहीं है। बच्चों का क्या होगा? शहजाद बोला, अल्लाह मालिक है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। चंद दूसरी बातें करने के बाद शहजाद ने इन्हें खुदा हाफिज कह दिया। एक अच्छी बात यह हुई कि बिजली और गैस बदस्तूर आ रही थी। इन लोगों ने रात का खाना 10 बजे खाया। बाहर बहुत बर्फ पड़ी हुई थी। इनके कॉटेज के बरामदे और दूसरे खुले हिस्सों पर तो मोटी लकड़ी की छत पड़ी हुई थी, मगर दाखिली दरवाजे पर इतनी बर्फ मौजूद थी कि बाहर की जानिब दरवाजा खोलकर निकलना मुहाल था। खुशकिस्मती से दरवाजा दोनों जानिब खुलने वाला था, इसलिए इन्हें फिक्र नहीं थी। बच्चे तो बर्फ देखकर बहुत खुश थे और अपने छोटे छोटे बेलचे लाकर बर्फ हटाने लगे। हामिद साहब की बीवी भी आकर इनके करीब खड़ी हो गई। उन्होंने तशवीश भरे लहजे में कहा, हमारा कल यहाँ से निकलना तो नामुमकिन लग रहा है। सड़क पर नजर डालें तो 1 फुट से तो क्या कम होगी बर्फ। रात तक अगर बर्फबारी ना थमी तो सुबह तक तो और भी बुरा हाल हो जाएगा। अगर हमें यहाँ ज्यादा दिनों तक रहना पड़ गया तो खाने पीने का क्या होगा? दूर दूर तक यहाँ कोई दुकान नजर नहीं आ रही। रास्ते में मैंने अक्सर बंगले बंद देखे हैं। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। गलती मेरी है। हालांकि शहजाद ने मुझे मना भी किया था, मगर मैंने हंसकर टाल दिया। बहरहाल तुम फिक्र मत करो। अगर हमें ज्यादा दिनों तक यहाँ रुकना पड़ गया तो पहाड़ के नीचे कुछ फासले पर बहुत से गांव हैं। मैं किसी न किसी तरह वहां पहुंचकर खाने पीने की अशिया ले आऊंगा। हामिद साहब ने इनकी हिम्मत बढ़ाने की खातिर कहा। इस सूरत हाल से इरम बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। बहरहाल हामिद साहब और उनकी बीवी की तरह इससे भी थोड़ी सी ये फिक्र लाहक हो गई थी कि ज्यादा दिनों तक रुकने की सूरत में खाने पीने का क्या होगा। रात को इन तीनों ने बड़े हिसाब से खाना खाया ताकि वो मजीद 1-2 दिन तक चल जाए। ये तो अच्छा हुआ था कि इरम ने चलते हुए ज्यादा खाना बना लिया था। इसके अलावा शहजाद ने बच्चों के लिए बहुत सारे बिस्किट, चिप्स और इनकी पसंद की ढेर सारी चीजें लाकर इसके हवाले कर दी। वो सोच रही थी कि अगर वो इन चीजों को एहतियात से चलाए तो 2-3 रोज तक काम चल जाएगा। रात 11 बजे टीवी में इस इलाके के बारे में खबर दी गई। शदीद बर्फबारी की वजह से बेशुमार लोग रास्ते में फंस गए थे। खदशा जाहिर किया गया था कि रास्ता साफ होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। यह खबर देखकर हामिद साहब की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। वो खुद को परेशान जाहिर करके दूसरों को परेशान नहीं करना चाह रहे थे। इससे इन लोगों की हिम्मतें भी जवाब दी जाती, मगर वो गुमसुम से जरूर हो गए थे। ऐसे में इनकी बहू ने इनकी हिम्मत बंधाई। अब्बा, आप परेशान ना हो, हमारे पास वाफर मिकदार में खाने की चीजें हैं। बिस्किटों के तो डब्बे के डब्बे शहजाद ले आए थे। चाय का भी ढेर सारा सामान है।
मुझे तो बच्चों की ज़्यादा फ़िक्र है। एक बात का ध्यान रहे, हमारी इस परेशानी का इल्म बच्चों को नहीं होना चाहिए। वो परेशान हो जाएँगे। हामिद साहब ने अपनी बीवी और इरम से कहा। अभी वो तीनों अपनी-अपनी सोचों में ही गुम थे कि हामिद साहब के मोबाइल पर किसी की कॉल आई। उन्होंने मोबाइल उठाकर देखा तो शहज़ाद का नंबर था। उन्होंने बटन दबाकर मोबाइल कान से लगाया। शहज़ाद कह रहा था, मैंने अभी-अभी टीवी पर देखा है, काली पहाड़ी के रास्ते बंद हो गए हैं। हाँ बेटा, तुमने भी ये खबर देख ली। हामिद साहब ने उदासी से कहा, मैंने तुम्हारी बात न मानकर सख्त गलती की है। पापा, ऐसा न कहें, आपने जो भी किया ठीक किया, शहज़ाद ने कहा। हम बहुत फ़िक्रमंद हैं शहज़ाद, हमें अंदाज़ा हो गया है कि हम कई रोज़ के लिए इस कॉटेज में कैद हो गए हैं। बच्चों के साथ है, खाने-पीने का क्या होगा? हामिद साहब ने बड़ी फ़िक्रमंदी से कहा। इनकी बीवी और इरम इनकी बातें गौर से सुन रही थीं। इनकी बीवी तो दूर खड़ी सर हिला-हिला कर इनकी बातों की तईद भी कर रही थी। पापा, आपको ज़हमत होगी, ज़रा मेरी इरम से बात करवा दीजिए। शहज़ाद की इस बात पर हामिद साहब ने मोबाइल बहू को दे दिया। दूसरी तरफ से शहज़ाद की शोख आवाज़ आई, बर्फबारी हो रही है, मज़ा तो खूब आ रहा होगा। इरम हंसकर बोली, अगर आप साथ होते तो और मज़ा आता। कहिए, खाना खा लिया? मैं सब चीज़ें पकाकर फ्रिज में रख आई थी। मैं अभी तो फैक्ट्री से आया हूँ। मैंने अब बुआ से खाना निकालने का कह दिया है, थोड़ी देर में खा लूँगा। और हाँ, सुना है कि तुम लोग वहाँ बर्फबारी की वजह से फँस गए हो। हसन और महमूद घबरा तो नहीं रहे? बच्चे तो ठीक हैं, इन्हें हमने सांस ही नहीं होने दिया है। अब्बा और अम्मी अलबत्ता परेशान हैं, इरम ने बताया। और तुम? शहजाद ने पूछा। अल्लाह के फजल से जब तक आप हैं, मैं क्यों परेशान होंगी? आपसे तो मुझे ये उम्मीद भी है कि अगर हालात मजीद खराब हुए तो आप हमें हेलीकॉप्टर में भी लेकर चले जाएंगे। इरम ने बड़े खलूस से कहा। जीती रहो, शहजाद ने हंसकर कहा। अच्छा, अब अपना पर्स उठाओ, इसके छोटे खाने की जिप खोलो। इसमें तुम्हें एक चाबी मिलेगी। ये चाबी इस तीसरे कमरे की है जो कोने में है। कमरा खोल कर देखो, फिर इसके बाद मुझे फोन करना। फोन बंद हो गया था। इरम शहजाद की बातें सुनकर सख्त हैरान थी। इसने जल्दी से अपना पर्स उठाकर इसकी छोटी जेब से चाबी निकाली। हामिद साहब और उनकी बीवी इसे हैरत से देख रहे थे। इन्हें लेकर वो तीसरे कमरे की तरफ आई। चाबी से दरवाजे का कुफल खोला। दरवाजा खुलते ही इन सब की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। कमरा कमरा नहीं, किसी जनरल स्टोर का मंजर पेश कर रहा था। आटे, चावल, चीनी, दूध के डब्बे, दालों के बहुत से पैकेट, चाय की पत्ती, खुश्क गोश्त के टीन, बच्चों के खाने पीने की अशिया। गर्ज कौन सी शय थी जो वहां नहीं थी? इरम ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और शहजाद के नंबर मिलाए। शहजाद, आपने तो दिल खुश कर दिया, शुक्रिया। मगर ये सब आपने कब किया था? दूसरी तरफ से शहजाद बोला, याद है, मैं गुज़िश्ता हफ्ते एक दो दिन के लिए घर से गायब हो गया था। मैं यही इंतजाम करने के लिए यहाँ आया हुआ था। मेरा एक दोस्त महकमा मौसमियात में भी है। इसने भी मुझे बताया था कि अगले हफ्ते से अचानक शदीद बर्फबारी शुरू हो जाएगी। मुझे पता था कि तुम लोगों का पक्का प्रोग्राम बन गया है, इसलिए मैंने एहतियातन चुपके से ये इंतजाम कर दिया। ये सब सामान इतना है कि 2 माह से भी ज्यादा चलेगा। इस तैयारी का मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था कि अचानक पता चलने पर आप सब लोगों को हैरानी के साथ साथ खुशी भी होगी। हामिद साहब भी बहुत खुश थे। उन्होंने इरम के हाथ से फोन लेकर शहजाद को खूब शाबाश दी। इरम और हामिद साहब की बीवी खुशी खुशी सामान को करीने से लगाने लगी। हामिद साहब बड़े इत्मीनान से बच्चों के साथ बातें करने लगे। सुबह वो लोग नाश्ते से फारिग होकर खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। हसन ने अपनी माँ इरम से कहा, अम्मी, पता नहीं हमारे पड़ोसियों के पास खाने पीने की चीजें होंगी भी या नहीं। वही जो कल हमारे साथ साथ आ रहे थे। इरम ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और मेज की तरफ इशारा करके बोली, वो देखो। हसन ने मुड़कर देखा। मेज पर 2 बड़े बड़े प्लास्टिक के थैले रखे हुए थे। इरम ने कहा, मैंने इस थैले में बहुत सारी खाने पीने की चीजें रख दी हैं। थोड़ी देर बाद हम इनके घर जाएंगे और इन्हें ये चीजें दे आएंगे। हामिद साहब हसन की बात सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, शाबाश हसन, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। हमें अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारी अम्मी की भी ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने खुद एक सांस करके पड़ोसियों के बारे में सोचा और इनको देने के लिए पहले ही से ये चीजें निकाल कर रख ली। इनके मुंह से तारीफ की कलिमात सुनकर इरम और हसन मसरूर नजर आने लगे। थोड़ी देर बाद वो सब घर से निकले और बर्फ पर संभल संभल कर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पड़ोसियों के घर पहुंच गए। इनका घर तकरीबन 1 फरलांग दूर था। वो लोग अपने घर में हैरान परेशान बैठे थे। इरम ने जब वो चीजें इनके हवाले की तो वो सब खुश हो गए। उन्होंने इनका बहुत शुक्रिया अदा किया। इस आदमी की बीवी बोली, बहन, हम तो बिल्कुल नाउम्मीद हो गए थे। बच्चों का साथ है, इसलिए ज्यादा परेशानी हो गई थी। आपसे हमने ये सबक सीखा है कि हमें अपने आसपास के इन लोगों पर भी नजर रखनी चाहिए जो किसी भी लिहाज से हमारी मदद के मुस्तहिक हैं। हामिद साहब की बीवी और इरम ये सुनकर मुस्कुराने लगी। हसन और महमूद इनके बच्चों में घुल मिल गए और इनके साथ खेलने लगे। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का जरूर इजहार करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें।